Hello friends, welcome to EduTalk with Shagor and my name is Shagor. I hope you are all fine. Today's topic is reproductive system and today I am going to discuss about male reproductive system. So friends, see this video from starting point to ending point, and so let's start. So friends, you can see here this is the diagram of male reproductive system, and now I am going to discuss about the male reproductive system. The male reproductive organ are include primary sex organs and accessory sex organs. The primary sex organ is testis. You can see here this is the testis, and accessory sex organ is seminal vesicles, prostate gland, urethra and penis. You can see here this is the seminal vesicles, this is the prostate gland, this is the urethra and this is penis. Now I am going to discuss about primary sex organ testis. In this diagram you can see this is the one testis. In male reproductive system there have two testes. The two testes are also known as testicles, the main important organ of male reproductive system. They have two main important functions. One is they produce gametes or sperm, and another is they secrete the hormone testosterone. The testicles or testes are oval shaped organ located in the scrotum, just behind the penis, right in front of the anus on male humans. Each testis weighs 10 to 15 grams. They are typically 2 inches long and 1.2 inches wide and 1 inch thick. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दो टेस्टिस होता है. यहाँ पे मैंने एक ही टेस्टिस ड्रॉ किया, तो दोनों टेस्टिस को एक साथ टेस्टिकल्स बोलता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसका जो मेन दो फंक्शन है, एक होता है जो स्पर्म और गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है जो हमारा हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो सीक्रेट करने में हेल्प करता है. और उसका जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड का होता है, एंड उसका जो पोजीशन होता है वो जो ये जो स्कूटम है, स्कूटम के अंदर ही उसका पोजीशन होता है. एंड जो पेनिस है उसका बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड द पेनिस एंड इन फ्रंट ऑफ द एनस. ये है टेस्टिस का पोजीशन. जो टेस्टिस का जो वज़न होता है, उसका जो वेट होता है 10 to 15 ग्राम होता है, एंड लॉन्ग होता है 2 इंचेस एंड 1.2 इंचेस होता है वाइड, एंड 1 इंचेस होता है उसका thick. And now I am going to discuss about the scrotum. The scrotum is a sac-like organ made of skin and muscle that houses the testes. It is located inferior to the penis in the pubis region. The scrotum is made up of two side-by-side pouches with the testes located in each pouch. The scrotum protects the testicles and acts as a climate control system. The testes must be at a temperature slightly cooler than the body temperature for normal sperm development. Muscles in the wall of the scrotum allow it to tighten and relax, moving the testicles closer to the body for warmth or further away to cool them. ये जो स्कूटम है वो एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, जो उसका अंदर इस टेस्टिस का पोजीशन होता है स्कूटम का. जो स्कूटम का जो मेन फंक्शन है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर से भी बहुत ही कूल होता है ये टेस्टिस का टेम्परेचर. तो हमारा बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है ये स्कूटम. And next is epididymis. You can see here this is the epididymis. The epididymis is a tube that connects the testicles to a vas deferens in a male reproductive system. It is a single narrow tightly colloid tube in adult humans, 6 to 7 meters in length. Its main function is it transport and stores sperm cells that are produced in the testes. जो ये जो एपिडिडमिस है, एपिडिडमिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो मेन फंक्शन है उसको ये जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस और ये जो ये देख रहे हैं ये है भास डिफरेंस. इस भास डिफरेंस को टेस्टिस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है. और उसका अनदर जो फंक्शन है, जो टेस्टिस जो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करने में भी हेल्प करता है, एंड भास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी मदद करता है.
And next is vas deferens. You can see here, this is the vas deferens, and the vas deferens is a long muscular tube that travel from the epididymis into the pelvis cavity to just behind the bladder. The vas deferens transport mature sperm to the urethra. ये जो भास डिफरेंस होता है वो एपिडिडमिस से कनेक्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर के सीधा पीछे से जो ये सेमिनल वेसिकल्स है उसके साथ कनेक्ट होता है एंड उसको यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट करता है, और उसका जो मेन फंक्शन है वो मैच्योर्ड स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है एंड उसको यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट करता है एंड वो यूरेथ्रा पेनिस की मदद से बॉडी से बाहर निकलता है. And now I am going to discuss about the seminal vesicles. The seminal vesicles are a pair of lumpy exocrine glands that stores and produce some of the liquid portion of semen. The seminal vesicles are about 2 inches in length and located posterior to the urinary bladder and anterior to the rectum. The liquid produced by seminal vesicles contains proteins and mucus and has an alkaline to help sperm survive in the acidic environment of the vagina. ये जो सेमिनल वेसिकल्स है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के सामने, जो सेमिनल वेसिकल्स ये वन टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो जो सीमेन है उसको प्रोड्यूस करता है एंड उसको स्टोर करने में भी मदद करता है, और उसका जो लेंथ है वो लेंथ 2 इंचेस होता है. एंड जो सेमिनल वेसिकल्स है जो सीमेन प्रोड्यूस करता है वो वहाँ पे क्या कंटेंट्स करता है, इट वेसिकल्स कंटेंस प्रोटीन्स एंड म्यूकस एंड हैज़ एन एल्कालाइन जो स्पर्म को वेजाइना में सर्वाइव करने में मदद करता है वहाँ पे, क्योंकि जो वेजाइना होता है वो एसिटिक इन नेचर होता है. जो एल्कालाइन है वो एसिटिक एनवायरनमेंट में स्पर्म को सर्वाइव करने में भी मदद करता है. And now I am going to discuss about the prostate gland. You can see here, this is the prostate gland. The prostate gland lies in the pelvis cavity in front of the rectum and behind the symphysis pubis. The urethra runs through the center of the prostate gland from the bladder to the penis. The prostate gland secretes a thin milky fluid that make up about 30% of the volume of semen and gives it its milky appearance. ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेल्विस कैविटी में उसका पोजीशन होता है एंड ये जो रेक्टम है उसका फ्रंट में भी उसका पोजीशन होता है, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये जो यूरेथ्रा है यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकलता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर से निकलता है एंड पेनिस तक आता है, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करता है. इट्स 30% ऑफ अबाउट सीमेन एंड इट गिव्स इट इज मिल्की अपीयरेंस. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूरेथ्रा. यू कैन सी हियर, दिस इज द यूरेथ्रा. The urethra is a canal that carries the sperm to the outside of the body through the penis. The urethra is also part of the urinary system because it is also the canal through which the urine passes. It is leaves the bladder and exits the body. ये जो आप लोग देख रहे हैं यूरेथ्रा, वो उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है स्पर्म को बॉडी से निकलने में मदद करता है. जो यूरेथ्रा हमारा यूरिनरी सिस्टम का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन पासिस होता है उसको पेनिस की हेल्प से बॉडी से बाहर निकलने में भी मदद करता है, वो होता है यूरेथ्रा. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेनिस. यू कैन सी हियर, दिस इज द पेनिस. द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन लोकेटेड सुपीरियर टू द स्क्रूटम एंड inferior to the umbilicus. The penis is roughly cylindrical in shape and contains the urethra and external opening of the urethra. The function of the penis is to deliver semen into the vagina during sexual intercourse, and the penis also allow for the excretion of urine through the urethra to the exterior of the body. जो आप लोग देख रहे हैं पेनिस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्कूटम है उसके सुपेरियरली उसका पोजीशन होता है एंड हमारा जो अम्बिलिकस है अम्बिलिकस के नीचे होता है पेनिस का पोजीशन.
वो उसका शेप राफली सिलेंड्रिकल होता है, राफली सिलेंड्रिकल इन शेप होता है उसका, एंड कंटेन्स यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। उसका जो मेन फंक्शन है वो सीमेंट डिलीवर करता है इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो पेनिस है, पेनिस सीमेंट को डिलीवर करता है। उसका और एक फंक्शन है वो होता है जो यूरिन है उसको बाहर निकलने में मदद करता है, वो यूरेथ्रा की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एंड कुछ सीखने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। एंड गाइस, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ समझने में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।